بھارتی فوج کے کھوکھلے بیانات بڑھتی مایوسی کی نشاندہی کرتے ہیں۔ بیانات عالمی برادری کی توجہ بھارت کے اندرونی خلفشار سے ہٹانے کے لیے ہیں۔ آرمی چیف کا کور کمانڈر کانفرنس میں اظہار خیال۔ فورم کا یوم یکجہتی کشمیر پر پرعزم کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی۔ 80,000 پاکستانیوں نے جام شہادت نوش کیا، معیشت کو نقصان پہنچا۔ اتنی قربانیوں کے بعد دہشت گردی کا خاتمہ ہوا۔ بدقسمتی سے چند سال پہلے ایک حکومت نے دہشت گردوں کو دوبارہ آنے دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اوورسیز پاکستانیز گلوبل فاؤنڈیشن کی تقریب سے خطاب۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی صلاحیتوں کی تعریف۔ اور 9 سیزن شاندار، 10واں بھی ہوگا یادگار۔ HPL سیزن 10 کا لوگو جاری۔ ورلڈ کلاس لیگ کی دہائی مکمل ہونے پر لوگو ایکس میں 6 فرنچائز کے رنگ بھی نمایاں۔ لیگ کے چیف ایگزیکٹو سلمان نصیر کا کہنا ہے PSL نے شائقین کو ناقابل فراموش لمحات دیے ہیں۔ بانی PTI کی جانب سے کوئی خط ملا، نہ ہی اسٹیبلشمنٹ کو ایسے کسی خط میں کوئی دلچسپی ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے PTI کو کسی معاملے پر بات کرنی ہے تو سیاستدانوں سے کرے۔ تحریک انصاف نے خط کے نام پر ایک اور ڈرامہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ ماضی کی فاش غلطیوں کے باعث آج پھر ہمارے جوان قربانیاں پیش کر رہے ہیں۔ دہشت گردوں کو اس لیے چھوڑا گیا کہ امن قائم ہوگا، لیکن حال سب نے دیکھ لیا۔ 2.5 سال میں سینکڑوں جوان شہید اور زخمی ہو چکے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا وفاقی کابینہ میں اظہار خیال۔ مہنگائی 2% آنے پر قوم کو مبارکباد دی۔ یوٹیلیٹی سٹورز کے بغیر رمضان پیکج لا رہے ہیں تاکہ کرپشن نہ ہو۔ زرعی ٹیکس وقت کی ضرورت ہے، دائرہ کار صوبوں تک پھیلا دیا۔ بانی نے گزشتہ روز خط کے مندرجات خود صحافیوں کو بتائے۔ انہوں نے کہا پاک فوج کی ملک کے لیے بڑی قربانیاں ہیں۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر کہتے ہیں آرمی چیف سے ملاقات میں سیکیورٹی امور پر گفتگو ہوئی تھی، اس میں کوئی سیاسی بات نہیں ہوئی۔ PTI پرامن احتجاج کا سلسلہ جاری رکھے گی۔ شبلی فراز کہتے ہیں دہشت گردی سمیت دیگر منفی سرگرمیاں بڑھنے سے بانی PTI پریشان ہے، انہیں ملک کی فکر ہے۔ بحیثیت قومی لیڈر خط لکھا، سیاسی عدم استحکام سے ملک پیچھے جا رہا ہے۔ جسٹس سرفراز ڈوگر کو اسلام آباد ہائی کورٹ کا سینئر پیونی جج بنانے پر 5 ججوں نے سینیورٹی کا معاملہ پھر اٹھا دیا۔ ذرائع کے مطابق ریپرزنٹیشن چیف جسٹس پاکستان اور چیف جسٹس ہائی کورٹ کو بھجوا دی۔ جسٹس محسن اختر کیانی، جسٹس طارق محمود جہانگیری، جسٹس بابر ستار، جسٹس اعجاز اسحاق اور جسٹس سمن رفت امتیاز معاملہ اٹھانے والوں میں شامل ہیں۔ ریپرزنٹیشن میں کہا گیا ہے جج جس ہائی کورٹ میں تعینات ہوتا ہے اسی کے لیے حلف دیتا ہے۔ آئین کے مطابق دوسرے ہائی کورٹ میں تبادلے پر جج کو نیا حلف لینا پڑتا ہے۔ ٹرانسفر جج کی سینیورٹی نئے حلف کے مطابق طے ہوگی۔ جسٹس گل حسن اورنگزیب، جسٹس ارباب طاہر کا الگ سے ریپرزنٹیشن فائنل کرنے کا امکان۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس سرفراز ڈوگر ATC اور احتساب عدالتوں کے نظامی جج تعینات۔ جسٹس گل حسن اورنگزیب کی جگہ جسٹس اعظم خان ڈسٹرکٹ کورٹس ویسٹ کے انتظامی جج تعینات۔ جسٹس ارباب محمد طاہر FIA کورٹس کے انتظامی جج تعینات۔ چیف جسٹس عامر فاروق کی منظوری کے بعد آفس آرڈر جاری۔ انتظامی تبدیلیاں اسلام آباد ہائی کورٹ میں 3 ججوں کے تبادلے کے بعد کی گئیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اسلام آباد میں جناح اسکوائر کا افتتاح کر دیا۔ تقریب سے خطاب میں کہا منصوبے سے اسلام آباد کے ٹریفک میں کشادگی آئے گی اور لوگوں کو سہولت ملے گی۔ برق رفتاری اور ذمہ داری کے ساتھ منصوبے کو 72 دنوں میں مکمل کیا گیا۔ محسن نقوی نے پنجاب سپیڈ کو محسن سپیڈ میں بدل دیا ہے۔ اسلام آباد کو خوبصورت بنا کر پاکستان کے لیے مثال بنا دیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا F9 فلائی اوور بھی 10 سے 12 دن میں مکمل ہو جائے گا۔ صدر آصف علی زرداری چین کے سرکاری دورے پر روانہ۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وزیر داخلہ محسن نقوی بھی ہمراہ۔ صدر مملکت بیجنگ میں چین کی اعلیٰ سطح سیاسی قیادت سے ملاقاتیں کریں گے۔ چینی صدر شی جن پنگ اور اسٹیٹ کونسل کے پریمیئر لی شیانگ سے ملیں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ، صوبائی وزراء شجیل میمن اور ناصر شاہ بیجنگ پہنچ گئے۔ پاکستانی سفارت خانے کے اہلکاروں نے استقبال کیا۔ سندھ حکومت کا وفد چین میں مختلف تجارتی اور صنعتی شخصیات سے ملاقاتیں کرے گا۔ پیکا ایکٹ میں حالیہ ترمیم بنیادی انسانی حقوق اور آئین سے متصادم ہے۔ پیکا ایکٹ کی شقیں آزادی اظہار رائے کے بنیادی حق کے خلاف ہیں۔
पिका एक्ट सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज, शहरी ने आईनी दरखास्त दायर कर दी। पिका एक्ट की शिकों का फुल कोर्ट के जरिए जायजा लेने की इस्तदा। दरखास्त में सदर ममलिकत, स्पीकर कौमी असम्बली, चेयरमैन सेनेट और सेक्रेटरी कानून को फरीक बनाया गया है। मुल्क में इंटरनेट की सुस्त रफ्तार पर अरकान कौमी असम्बली भी परेशान। कायमा कमेटी के अजलास में इंटरनेट मसाइल पर अरकान बरहम। कमेटी के रुकन शेर अली अरबाब बोले, 5G चलना तो मुहाल, फोन इंटरनेट ना होने के बराबर है। चेयरमैन PTA ने कहा, भारत में मोदी हुकूमत ने 35 लाख किलोमीटर फाइबर बिछाए। यहाँ हुकूमत ने टेलीकॉम सेक्टर में एक पैसा नहीं लगाया। AT के पार्लिमानी सेक्रेटरी ने बताया, स्टारलिंक से मामलात हतमी मरहले में है, सर्विस रवां साल जून तक दस्तयाब होगी। सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील की सुप्रीम कोर्ट में समाअत। जस्टिस जमाल मंदोकेल ने पूछा, क्या दहशतगर्दी जैसे संगीन जुर्म पर किसी का खुसूसी अदालत में ट्रायल हो सकता है? वकील सलमान अकरम राजा ने कहा, सिविलियन का खुसूसी अदालत में ट्रायल किसी सूरत मुमकिन नहीं। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा, कानून को इसके गलत इस्तेमाल पर कलअदम करार नहीं दिया जा सकता। अगर एक जुर्म फौजी करे और वही जुर्म आम आदमी करे तो ट्रायल अलग जगह कैसे हो सकता है? सलमान अकरम राजा ने मौक़िफ़ अपनाया, जिन लोगों ने फौज ज्वाइन करके बुनियादी हुकूक सरेंडर किए उन्हें दूसरों से नहीं मिलाया जा सकता। मेरा मौक्कल अर्ज़म लाहौर का फर्स्ट क्लास क्रिकेटर है, उसे खुसूसी अदालत से 6 साल सजा दी गई। समाअत पीर तक मुलतवी। रमजान उल मुबारक से पहले चीनी की बढ़ती कीमत से व्यापारी भी परेशान। होलसेल ग्रोसर्स ने 3 माह के लिए चीनी बैरून मुल्क भेजने पर पाबंदी का मुतालबा कर दिया। चेयरमैन होलसेल ग्रोसर्स रऊफ इब्राहिम कहते हैं, होलसेल में चीनी की कीमत 150 रुपए और रिटेल में 160 रुपए तक पहुंच गई है। जखीरा अंदोज माफिया सरगर्म है। मार्च के एडवांस सौदे 152 रुपए में हो रहे हैं। पाकिस्तान रेलवे का किरायों में 5% इजाफे का ऐलान। नए किरायों का इतलाक कल से होगा। किराए में इजाफा डीजल की कीमत में हालिया इजाफे के बाद किया गया। $1999 के समुद्री तूफान के बाद लापता 7 माहीगीरों का भारतीय जेल में कैदियों का इंकशाफ। रेडी गोट के 7 माहीगीरों की 25 साल से भारतीय जेल में कैद होने की तस्दीक हो गई। अहले खाना ने कहा है, भारतीय जेल से रिहा माहीगीर मुश्ताक ने दीगर साथियों की कैद की तस्दीक की। कैदियों के भाई ने ARY न्यूज से गुफ्तगू में कहा, अपने प्यारों का 25 साल से इंतजार कर रहे हैं। माहीगीर रहनुमा यूनुस खासी ने हुकूमत से मुतालबा किया कि माहीगीरों की रिहाई के इंतजामात किए जाएं। दूसरों के मंसूबे पर झूठी तख्तियां लगाने वाले पर भी पीका एक्ट का इत्तलाक हो सकता है। सिंध हुकूमत की तर्जुमान सादिया जावेद का वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी को एहतियात का मशवरा। कहा, EV बसें हों या दूसरे मंसूबे, जो क्रेडिट सिंध हुकूमत का है वो देना होगा। अज़मा बुखारी का जवाब, कहा, सादिया बहन पहले अपनी माशरती उलूम और सियासियात दुरुस्त करें। मुस्लिम लीग नून के मंसूबे निकाल कर देख लें, इन सियासी जमातों के पास बताने और करने को कुछ नहीं। मरियम नवाज के कामों में कीड़े निकालने की कोशिश करते रहते हैं। सिंध के जो हालात हैं, ये कहानी फिर सही। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने हरीपुर के इलाके कोठहरा के प्राइमरी स्कूल की हालत जार का नोटिस ले लिया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, ARY न्यूज की रिपोर्ट पर प्राइमरी स्कूल का मामला वज़ीर आला KP से 2 दिन पहले शेयर किया। वज़ीर आला की हिदायत पर प्राइमरी स्कूल के लिए फंड्स मुख्तस किए जा रहे हैं। अली अमीन गंडापुर की KP डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर्स की नाकिस कारकर्दगी पर भी बरहम। ओहदों से हटाने का हुक्म दे दिया। मेरिट की बुनियाद पर प्रोफेशनल और काबिल डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर्स तैनात करने की हिदायत। कहते हैं, तमाम मराकिज़ सेहत की मॉनिटरिंग को मजीद मौसर बनाया जाए। गैर हाजिरी के आदी डॉक्टर्स और दीगर तिब्बी अमले के खिलाफ भरपूर एक्शन लिया जाए। KMC वकील ने अदालत में गलत बयानी की। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी सिंध का अदालत में जवाब। बल्दियाती इदारों के मुलाजमीन की पेंशन की अदायगी से मुताल्लिक केस में सिंध हाई कोर्ट ने मेयर कराची मुर्तजा वहाब को तलब कर लिया। सूरत हाल की वजाहत के लिए म्यूनसिपल कमिश्नर और दीगर हुकाम को भी बुला लिया। 28 जनवरी को KMC वकील ने दावा किया था, टाउन्स को सिंध हुकूमत पेंशन की रकम देती है। समाअत 2 हफ्ते के लिए मुलतवी। लाहौर में घरेलू मुलाजमा ने मालिकन की डांट का गुस्सा 3 माह के बच्चे पर निकाला।
मुलाजिमा बच्चे पर तशद्दुद करती रही। बच्चे के मुंह पर कपड़ा रखकर सांस बंद करने की कोशिश की गई। बच्चे की तबीयत बिगड़ने पर वालिदैन ने सीसीटीवी वीडियो देखी तो तशद्दुद का पता चला। पुलिस का कहना है मुलाजिमा जेवरात और रकम चोरी करके फरार हो गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिमा की तलाश शुरू कर दी। और यकजान है कश्मीर और पाकिस्तान। एवाई न्यूज़ ने यौम यकजहती कश्मीर पर खुसूसी नगमा जारी कर दिया। साहिर अली बग्गा ने आवाज़ का जादू जगाया। वसीम बादामी और इकरारुल हसन ने लहू गरमाया। मगरबी किनारे में इसराइली चेक पोस्ट पर फायरिंग से 8 फौजी जख्मी, 2 की हालत तशवीशनाक। गजा वालों की मुश्किलात में कमी ना आ सकी। अपने इलाकों में लौटने वाले इमदाद की मुंतजर। हुकाम का कहना है शिमाली गजा में सब कुछ तबाह है। कुछ लोगों के पास सर छुपाने की जगह नहीं। 2 लाख खैमों की फौरी जरूरत है। हुकाम बताते हैं इसराइली इमदाद में रुकावट बन रहा है और मुआहदे पर अमल दरामद नहीं कर रहा। हमास का कहना है हमने जंगबंदी मुआहदे की पासदारी करते हुए यरगमालियों को रिहा किया। अब दूसरा मरहला शुरू होना चाहिए। अमेरिका की पड़ोसियों से तिजारती जंग का खतरा टल गया। सदर ट्रंप ने मेक्सिको और कनाडा पर इजाफी टैरिफ 30 दिन के लिए रोक दिया। ट्रंप का कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो और मैक्सिकन सदर क्लॉडिया से टेलीफोन पर राब्ता। मेक्सिको और कनाडा की गैर कानूनी तारकीन वतन और मनशियात रोकने के लिए इकदामात की यकीन दहानी। चीन का भी अमरीकी मसनूआत पर टैक्स लगाने का ऐलान। चीनी वजारत खजाना ने कहा अमरीका से LNG और कोयले की दरामद पर 15% टैक्स लगाया जाएगा। खाम तेल, ज़राई मशीनों और पिकअप ट्रक पर 10% ट्रक लगाएंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की इंतजामिया का न्यूयॉर्क टाइम्स समेत 4 मीडिया इदारों को पेंटागन में मौजूद अपने दफातर खत्म करने का हुक्म। नेशनल पब्लिक रेडियो, कॉमकास्ट कॉरपोरेशन की मिल्कियत NBC न्यूज़ और पॉलिटिको को भी 14 फरवरी तक पेंटागन की इमारत खातिल करना होगी। न्यूयॉर्क पोस्ट, वन अमेरिका न्यूज़, ब्रेटवार्ट और हफ पोस्ट न्यूज़ को दफातर फराहम किए जाएंगे। कौमी क्रिकेट टीम ने सैफ अफ्रीदी सीरीज और चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियों का आगाज कर दिया। कौमी स्क्वाड की हेड कोच आकिब जावेद की निगरानी में लाहौर में ट्रेनिंग। न्यूजीलैंड कल और जनूबी अफ्रीका की टीम जुम्मे को लाहौर पहुंचेगी। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का पहला मैच हफ्ते को कज़ाफी स्टेडियम में खेला जाएगा। ICC चैंपियंस ट्रॉफी का पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में सफर जारी। गुज़श्ता रोज ट्रॉफी की बहावलपुर की तारीखी स्टेडियम में रोनमाई की गई। शायकीन ने ट्रॉफी के साथ तस्वीरें भी बनवाई।